قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا بالقول وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين درود پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب اعزا، حسین کے ماتمداروں، زہرا کے غم میں شریک ہونے والوں، آج امام کے 10ویں کی رات ہے اور اس کا 10واں جس کا نہ سوئم ہوا نہ 10واں ہوا نہ 40واں ہوا، ان صبر کرنے والوں کا 10واں، ان ثابت قدم رہنے والوں کا 10واں، جنہیں ان کے ورثاء کو کسی طرح کی تسلی تشفی، کسی طرح کے صبر کی تلقین کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پورے ایام اعزا میں اس آیت کے ذیل میں کوشش کی گئی کہ آپ حضرات تک امام مظلوم علیہ السلام کے اس صبر و استقامت کی کہانی کو سنایا جائے تاکہ ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو، وہ استقامت ہمارے اندر آئے جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء وہ صدا بلند کر کے ہمیں اور آپ کو ہر دور کے محبان اہل بیت کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ حل من یاسر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، یہ امام حسین علیہ السلام کی صرف صدا نہیں ہے بلکہ آج کے ہمارے امام کی بھی صدا ہے، جو اس بگڑے ہوئے ماحول میں، عفونت زدہ سماج میں ہمیں اور آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ کیا تم اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو جس پر ہمارے جد نے چلنے کے لیے تمہیں متوجہ کیا تھا۔ اس سماج سے دوری اختیار کرنے کی طرف یہ ایک اشاریہ ہے کہ تمام وہ پورا سماج جسے اسلامی سماج کہا جاتا تھا اور جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کوسوں دور ہو چکا تھا، رسول کی آنکھ بند ہوئے صرف 50 سال ہوئے تھے، ایسے تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول کی صحبتوں میں رسول کے کلمات سنے تھے، ان کی احادیث سنی تھی۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مولا کائنات کو دیکھا تھا اور وہ خلافت کا دور بھی دیکھا تھا جس دور میں اس طرح حکومت کے نام پر اسلامی خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید جیسا فاسد و فاجر شخص اسلام کا سمبل بن کے، اسلام کی علامت بن کر کے تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور رسول کا وہ فرمان سچ ثابت ہوا کہ بنی امیہ کے لوگ میرے منبر پر آ کر کے اس طرح میرے منبر سے سلوک کریں گے جیسے ایک بندر نچانے والا، جیسے ایک بندر کا تماشا کرنے والا اپنے تماشے کو دکھاتا ہے،
और तमाम लोग बगैर चूनो चरा के आंख बंद किए हुए उस तमाशे को देख रहे हैं। यही बिल्कुल हाल जो है उस पूरे जो है समाज का था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये एहसान है कि उन सहाबा के दरमियान, उन ताबईन के दरमियान, उन तबे ताबईन के दरमियान एक ऐसी आवाज़ बन के उभरे कि जिस तरह मेरे दादा ने, रसूल ने जब क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू की सदा बुलंद की थी, उस वक्त रसूल का दीन ही नहीं, रसूल को भी जो है बचाया। मेरे बाबा ने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी तमाम तर क़ुव्वत को सर्फ कर दिया। मेरी वालिदा गिरामी ने अपने वलायत अली को बचाने के लिए दरबार तक का रुख किया और अपने खुतबे के ज़रिए ये वाज़ेह किया कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा शौहर नहीं है बल्कि कायनात में सबका मौला और आका है, सबसे बेहतर है। ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद, तमाम एहतजाजात के बावजूद वो नतीजा हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तमाम इस्लामी समाज तलवारें लेकर के आ गया। चंद लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक करते हुए करबला के मैदान में आए और आशूर के दिन हल मिन नासिरिन यंसुरना के ज़रिए इमाम ने जो है ये पैगाम दिया कि मेरे साथ जो चंद लोग आए थे उन्होंने सब्र व इस्तिकामत का वो मुज़ाहरा किया कि कायनात में ऐसे न तो किसी के सहाबी मिले, और फ़ख्र करके फ़र्ज़ंद रसूल ने ये जो कहा कि नाना रसूल खुदा, मेरे सहाबा ऐसे हैं कि ऐसे सहाबा जो है किसी के नहीं मिले। आपके सहाबी भी आपको नमाज की हालत में छोड़ करके चले जाते थे। ए बाबा अली मुर्तज़ा, आपके सहाबियों ने भी जो आपका साथ छोड़ दिया। ए भाई हसन मुश्तबा, आपके सहाबियों ने भी हक़ वफ़ादारी को अदा नहीं किया। लेकिन मेरे ऐसे सहाबी हैं, मेरे ऐसे जानिसार हैं जो कुरान की इस आयत के मिस्दाक़ हैं कि सब्र व शुक्र में भी वो बिल्कुल मेरे जो है कदम से कदम मिला करके जो है वो चल रहे हैं। कहीं पर भी जो है पाए इस्तिकामत में लफ्ज़िश नहीं है। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसार ने अपनी कुर्बानी को पेश कर दिया और हल मिन नासिरिन की सदा पर लब्बैक कहते हुए अपनी शहादत गए मंजिल पे कामयाबी से गुज़र गए। लेकिन वो कामयाबी कहीं भी कामयाबी न होती अगर जो है वो बीवियाँ न होती, अगर वो मेरा बीमार इमाम न होता जो करबला से लेके कूफे तक और कूफे से शाम तक, उस शाम में जहाँ इस्लामी हुकूमत को अमवी हुकूमत में तब्दील कर दिया गया। चूँकि जाना जो है वहाँ ज़रूरी था, लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए कि वहाँ का समाज क्या था। समाज ये था कि नौज़ बिल्लाह अली जो है एक दुश्मन दीन, हुसैन जो है एक दुश्मन दीन है, एक खारजी है। इसने जो है हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है खुरूज किया था, इसलिए उसे जो है कत्ल कर दिया गया है। इसलिए जो है वहाँ पे जाना ज़रूरी था। दरबार इब्न ज़ियाद में भी जा कर के जनाब ज़ैनब ने यही चीज़ बताई जब उस मलऊन ने जनाब ज़ैनब से मुखातब होकर कहा था कि देखा तुम्हारे भाई के साथ जो है क्या सलूक हुआ। और उस वक्त जो है शहज़ादी ज़ैनब ने सब्र व शुक्र का मुज़ाहरा करते हुए, इस्तिकामत का मुज़ाहरा करते हुए ये कहा कि तू जो है उन चीज़ों को नहीं देख रहा है जो इरफानी आँखें मैं देख रही हूँ कि मेरे भाई का रोज़ा बना होगा, उसके इर्द गिर्द हज़ारों लाखों लोग ज़ियारत कर रहे होंगे, मलाइका का हुजूम होगा और लोग जो है मेरे भाई के रोज़े की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो तमाम तर कुर्बानियों को और फिर उन तमाम चीज़ों को जनाब ज़ैनब ने बताया कि देखो तुम जो है इस गलत फहमी में हो। जालिम जो है हमेशा गलत फहमी में रहता है, मजलूम जो है वो हमेशा जीतता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत को साबित करते हुए जनाब ज़ैनब ने जो है ये कहा कि परवरदिगार आलम को तू जो है तखातुब करके कह रहा है कि देखा हुसैन के साथ जो अल्लाह ने जो है कैसा सलूक किया।
لیکن میں نے جو ہے اپنے پروردگار عالم کو صرف جو ہے جمیل پایا ہے، میں نے جو ہے اسے حسین پایا ہے، اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ ہے، ہم آل محمد کا مزاج یہ ہے کہ جس حال میں بھی اللہ رکھے ہم جو ہے شکر سے کام لیتے ہیں، ہم صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امام حسین کی شہادت روز بروز جو ہے اس کی اہمیت و افادیت جو ہے بڑھتی جاتی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ رسول کا ارشاد ہے کہ حسین کا تذکرہ جو ہے، حسین کا نام جو ہے مومنوں کے قلوب میں حرارت پیدا کرتا ہے، مومنوں کے قلوب کو جو ہے وہ برماتا ہے، مومنوں کے قلوب میں جو ہے وہ استقامت جو ہے پیدا کرتا ہے۔ حسین جو ہے وہ انقلاب بن کے جو ہے سامنے آئے، اور ایسا انقلاب بن کے آئے کہ آج کائنات میں سب سے اہم انقلاب اگر کسی انقلاب کو کہا جاتا ہے تو وہ حسین کی شہادت کو کہا جاتا ہے۔ اب تک دنیا کے جتنے بھی انقلابات آئے، 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 100 سال تک اس کا ذکر ہوتا ہے، تاریخوں میں وہ جو ہے ورق میں جو ہے وہ لپٹ کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین کا تذکرہ روز بروز جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ محرم مناتے ہیں، امام کا جو ہے سوئم کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، امام کا سوگ جو ہے وہ ہر وقت مناتے ہیں، چاہے ہمارے یہاں خوشی کی تقریب ہو، چاہے وہ ہمارا غم کا جو ہے موقع ہو، ہم حسین کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ کائنات میں حسین اور اصحاب حسین اور حسین کے انصار جو ہے ایسے تھے جن پر ظلم و زیادتی اتنی کی گئی ہے کہ کائنات میں کسی کی نہیں کی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ گھوڑوں کی لاشوں سے پامال کر دیا گیا، ان کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا، ان کے ورثہ کو ان کا سوئم کرنے نہیں دیا گیا، 10واں نہیں کرنے دیا گیا۔ ہم یہ احتجاج جو ہے کرتے ہیں، ہم سوئم کر کے احتجاج کرتے ہیں کہ کس کا ہم جو ہے سوئم کرتے ہیں جس کا سوئم نہیں ہوا ہے، کس کا جو ہم 10واں کرتے ہیں جس کا 10واں نہیں کرنے دیا گیا، کس کا ہم 20واں کرتے ہیں جس کا 20واں نہیں کرنے دیا گیا، کس کا 40واں کرتے ہیں، اور اس کا تو 40واں ایسا ہے اس مظلوم کا کہ کائنات میں کسی کے 40ویں کے ایسا اہتمام ہوتا ہی نہیں ہے۔ کریم ابن کریم کا 40واں، اس کا جو ہے دسترخوان اتنا بڑا ہوتا ہے، 80 کلومیٹر کا دسترخوان، کروڑوں جو ہے اس میں شامل ہونے والے، یہ تو جو ہے نجف اور کربلا کے درمیان کے کروڑوں لوگ ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، چاہے وہ حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر صاحب دل انسانیت سے محبت کرنے والا شخص جو ہے حسین کا 40واں مناتا ہے، حسین کا غم مناتا ہے۔ گویا حسین کا غم منا کر کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ظالم کے خلاف یہ صدائے احتجاج اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کائنات میں اس مظلوم کے خون کا بدلہ لینے والا نہیں آ جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، جب وہ تشریف لائیں گے ہمارے امام، تو خانہ کعبہ کی چھت پر جہاں علم مبارک کو نصب کریں گے اور قرآن کی آیت لکھیں گے نصر من اللہ و فتح قریب، تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کربلا جائیں گے اور کہہ فرمائیں گے جد مظلوم آپ کے خون کا بدلہ لینے والا جو ہے وہ آ گیا۔ میں یہاں پر جو ہے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور کبھی کبھی جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو ہے پیغام دیں، یزید کیا زندہ ہے؟ کیا ابن زیاد جو ہے زندہ ہے؟ کیا شمر جو ہے زندہ ہے؟ اس کا مطلب یہ پھولی زندہ ہے، فرملہ زندہ ہے۔ وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والے تھے وہ آج جو ہے زندہ نہیں ہیں، لیکن ان کے فالوور جو ہے آج بھی موجود ہیں، ان کی فکر کی تاثیر کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ امام جو ہے ان سے بدلہ لیں گے جو یزیدیت کو جو ہے بڑھاوا دینے والے ہیں، جو یزیدی فکر کا جو ہے پرچار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جو ہے امام آئیں گے اور ہر اس شخص کو جو ہے قتل کریں گے۔ یعنی لوگ جو ہے یہ پڑھ دیتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو 70,000 علماء کو قتل کریں گے، بالکل حدیث میں ہے
70,000 उलमाए सू को इमाम कत्ल करेंगे, लेकिन इमाम उसे भी कत्ल करेंगे हर उस 20 साल के नौजवान को जो मसाइल शरइया से वाकिफ़ नहीं होगा, जो उसूल दीन को नहीं जानता होगा, जो फरूए दीन को नहीं जानता होगा, जो मजहब की जो है जिसे आगही नहीं होगी। कल जो है डॉक्टर साहब ने जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जो है उस हदीस के जो है उस हदीस को जिसका सिर्फ मैंने जो है अभी यानी इशारा किया था कि इमाम ने फरमाया कि इल्म जो है दो तरह का है, एक बदनों का इल्म और एक जो है वो दीन का इल्म, फिक़्ह का इल्म, जो है शरीयत का इल्म है। अभी जो है सिर्फ बदनों के इल्म पे जो है यानी लाखों उसके जो है कैटेगरीज हो गई हैं, लेकिन उस ज़माने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये बताया और हर जो है उस वक्त की पैथी या इल्म का जवाब और वहाँ से उसका एक्सपर्ट जो है तैयार करके अपने मकतब से इमाम ने जो है भेजा। जाबिर इब्न हय्यान हो, तमाम जो है इस तरह के जो है बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट जो उस ज़माने में पैदा हुए। ये हमारी मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि इमाम ने तो एक्सपर्ट आपको दे दिए थे, लेकिन आपने जो है उन एक्सपर्ट से जो इल्म को हासिल नहीं किया। ये हमारी और आपकी बदकिस्मती है। चुनांचे इमाम का एक एजेंडा होगा कि कोई भी जो है हमारे लश्कर में जो शामिल होने वाला हो वो जो है इल्म से जो है दूरी रखने वाला ना हो। इल्म जो है से जो है उसकी आगाही होना ज़रूरी है, इल्म दीन से उसकी वाक़फ़ियत ज़रूरी है। वो अगर नहीं जानता है कि उसूल दीन क्या है, फ़ुरूए दीन क्या है, जब उसूल दीन नहीं जानेगा तो इमाम की वलायत को क्या जानेगा, जब मौलाए कायनात को नहीं जानेगा तो इमाम हसन को क्या समझेगा, जब इमाम हसन को नहीं समझेगा तो हुसैन मज़लूम को क्या समझेगा। और जाहिर है ये तो कैरेक्टर 3 ऐसे हैं जो तारीख़ में वाज़े हैं, लेकिन हमारे बहुत से अइम्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैदोबंद में जो है गुजार दी, जिनके उलूम जो है हम तक जो है उस तरह नहीं आ सके जैसे मौलाए कायनात के आए, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आए। लेकिन इमाम जो है चाहते हैं कि तुम जो है उन तमाम उलूम से जो है आगही हासिल करो। यानी ये जो है एक मैसेज है कि हम जो है अगर जो है इमाम का सोम मनाते हैं तो इमाम के इरफान के साथ, इमाम का जो है 10वां मनाते हैं तो इमाम के उस पूरे पैगाम के साथ, इमाम का 20वां अगर मनाते हैं तो इमाम के उन तमाम उलूम और उन तमाम कलिमात और उन तमाम खुतबात को मद्देनज़र रख कर जो मुख्तलिफ औकात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश किए हैं, और अगर 40वां बनाते हैं, अगर जो है 40 का, तो अइम्मा ने किस तरह जो है अपने जद का जो है 40 मनाया है, किस तरह जो है 40 मनाया है। ये एक जो है सही जो 80 किलोमीटर की होती है नजफ से करबला तक, उलमा ने इसलिए रखा है कि आज जो है तुम जो है रिहर्सल कर लो, कल जो है अगर हमारा वक्त का इमाम आता है तो वो तुम्हें जब सदा देगा कि कौन है जो है मेरी मदद करने वाला है, इसलिए कि वही सदा बुलंद करेंगे जो हुसैन मजलूम ने बुलंद की थी। जो करबला के मैदान में कौन है जो मेरी मदद करने वाला है, कौन है जो मेरा नासिर बन के जो है वो आएगा। जाहिर है जो कैरेक्टर के एतबार से, जो किरदार के एतबार से, जो बेनमाजी होगा कैसे इमाम की फ़ौज में जा सकता है, जो रोज़ा रखने वाला होगा, जो खुम्स जो है न निकालने वाला होगा, जो ज़कात को न देने वाला होगा, जो अहकाम शरिया पे अमल करने वाला नहीं होगा, जाहिर है वो इमाम के जो है उस फौज में कैसे जा सकता है, उस लश्कर का कैसे हिस्सा हो सकता है। और जाहिर है आप तो जो है तमाम तारीखें जो है सुनते हैं, खैबर सुनते हैं, खंदक सुनते हैं, इसलिए कि अलमबरदार लश्कर जो होगा तो वो भी चाहेगा कि हमारे फौजी भी जो है वो हमारे मिजाज के हैं। इसलिए कि अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं अगर मिजाज के नहीं हैं तो उस तरह फतह कामरानी नहीं हुई है। मिजाज के अगर मिल जाते हैं तो हुसैन जैसी जो है फतह मिलती है, जो कायनात में फतेह अजीम बन करके जो है वो आती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद आज जो है मुहर्रम की 20 तारीख है और ये वो अय्याम है जो शहजादियां कूफे से शाम की तरफ जो है और शाम पहुंचने वाली है। आप तसव्वुर करें उन बीवियों के दिल पे क्या गुजरी होगी। 12 गले हैं, एक रस्सी, 4 साल की बच्ची भी है और ज़ैनब जैसी मोहब्बत
फिजा जैसी ज़ईफ़ा भी है, सब एक रस्सी में जो है बंधे हुए हैं। जुल्म की जो है इंतहा देखिए, बर्बरियत की इंतहा देखिए। जाहिर है वो हाथ कैसे उठाएंगे कि वो फातिहा पढ़ें, वो 10वें की फातिहा कैसे दें। हम जो है इसीलिए जो है 10वां करते हैं कि उन मजलूमों को मौका नहीं मिला। कोई अगर जो है हाथ भी उठाता था तो हाथ पर शिम्र के जो है दुर्रे पड़ते थे। रिवायत के लफ्ज़ हैं, यही शाम का रास्ता था और हमारे मरसिया नगारों ने एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो नज़्म किया है, वो शीरी का कैरेक्टर। शीरी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक कनीज़ थी और उस कनीज़ी पर हमेशा फ़ख्र किया करती थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इल्म गैब के जो है मालिक थे, उन्होंने शीरी से कहा, ए शीरी, हम चाहते हैं कि तेरी शादी करके हम अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाएं। मौला, हमें तो आपकी कनीज़ी काफ़ी है, हम आपकी कनीज़ी में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन शीरी हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी शादी कर दें ताकि हम तुम्हारे जो है मेहमान बने। शीरी ने कहा, अच्छा मौला, आपकी मर्जी है, आप मेरी शादी कर दीजिए। शादी जो है शीरी की कर दी गई और एक सरदार से जो है शादी की गई, एक ताल्लुक़दार से शादी कर दी, एक किलेदार से जो है शादी कर दी। और वो किला जो है वो शाम के जो है रास्ते में था, जिस रास्ते से जो है अहले हरम को कैदी बना करके जो है ले जाया गया था। और शीरी ने ये ख्वाब में देखा कि मेरे मौला हुसैन आए हैं। और शीरी, तुम जो है तैयार नहीं हो अपने आका और मौला हुसैन की मेहमानी के लिए। एक बार जो है शीरी जो है ख्वाब से जो है जाग जाती है, शौहर को बुलाती है और कहती है कि मैंने ख्वाब में अपने आका और मौला हुसैन को देखा है, वो जो है हमारे घर जो है तशरीफ ले आए हैं, इसलिए कि मेरे आका और मौला हुसैन सादिकुल वाद हैं, मेरे सच्चे नबी के जो है सच्चे बेटे हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि शीरी, मैं तुम्हारी शादी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारे घर जो है जरूर जो है आऊंगा। और मेरे मौला और आका ने ख्वाब में आकर के बताया है कि ये शीरी, मैं आ गया हूँ, जाओ किले से बाहर, रास्ते पे अपने फौज और लश्कर के साथ चले जाओ और इमाम का इस्तकबाल करो। एक बार उसका शौहर कहता है कि मैं कैसे पहचानूंगा कि वो लश्कर वो तेरे इमाम ही का लश्कर है। कहा कि बस समझ लेना कि मेरे आका और मौला हुसैन के आगे एक 34 साल का कड़ियल जवान जो है वो होगा। कौन होगा? उसे जो है वो गाजी अब्बास कहते हैं, अबुल फजल अब्बास कहते हैं। मेरे माका और मौला हुसैन के दाहिनी तरफ मेरे रसूल की शबी अली अकबर जो है वो होंगे और बाईं तरफ मेरे आका और मौला हसन की निशानी कासिम होगी, ये जाहो हशम होगा। तुम समझ जाना कि ये मेरे मौला हैं और उसके बाद तुम उन्हें इज्जत व एहतराम से जो है ले करके आना। शौहर जो है वो चला गया, लेकिन क्या देखता है कि अजीबो गरीब जो है लश्कर आ रहा है, अजीबो गरीब जो है काफिला है। काफिले का अजीबो गरीब मंजर है। चंद सर हैं जो नेज़ों पर आवेजा हैं और उनके पीछे चंद ऊंट हैं, जिन पर कुछ बीबियां रसन बस्ता जो है वो मौजूद हैं। और उनके आगे एक नौजवान है, लेकिन उसकी नकाहत तो कमजोरी का ये आलम है कि उससे चला नहीं जाता है। तौके खारदार है, पैरों में बेड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। एक बार वो कहता है कि मेरी भी ज़ौजा ने जो निशानियां बताई हैं वो इस जो है काफिले में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि मौला हुसैन का ये काफिला है। वो चला जाता है और जाके अपनी बीवी से कहता है काफिला तो जो है वो आया है, लेकिन काफिला अजीबो गरीब है। शीरी कहती है लेकिन इस काफिले के आने के बाद जो है मेरे दिल में अजब हौल हो रही है, अजब जो है रंजो गम की जो है कैफियत है। जाओ
जो कैफियत तुम बता रहे हो कि इस तरह से जो है वो काफिला वो कैदियों का जो है यहाँ पर जो है ठहरा हुआ है हमारे किले के करीब। एक बार जो है वो शीरी कहती है कि जाओ मालूम करो कि आखिर ये किन का काफिला है, कौन है जो इस तरह कैदी बनाकर लाए गए हैं। क्या ये इस्लाम के दुश्मन हैं जो इस तरह इस्लामी हुकूमत में कैदो बंद के साथ लाए गए हैं। एक बार जो है शौहर जाता है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहता है कि ए शख्स आखिर तुम बताओ कि तुम लोग जो है कौन हो और तुम्हें इस तरह किस जुर्म में जो है कैद किया गया है। मेरा मजलूम इमाम, अरे मेरा बीमार इमाम एक बार कहता है अरे जा करके अपनी ज़ौजा से कह दो हम आले रसूल हैं, हम अली की औलाद हैं, हम नबी के जो है अहले बैत हैं, हम कोई और नहीं हैं। एक बार शौहर जाके कहता है शीरीन वो शख्स जो कैदी है जो उन कैदियों का काफिला सालार है वो कहता है कि हम अहले बैत रसूल हैं। एक बार शीरी ने सर पीट लिया, अरे बलवे आम में अरे आना चाहती है, किले से बाहर निकलना चाहती है। शौहर कहता है अरे सुन लो, अरे तुम क्यों इतना जो है घबराई हुई हो, अरे इस तरह से अरे तुम बाहर नहीं जा सकती हो, तुम मेरी बीवी हो। मैं कहूँगा ए शीरी के शौहर, अरे जिसके कनीजी में तुम्हारी बीवी अरे शीरी रही है उसकी मलका अरे बंगे सार अरे ये तुम्हारे किले के बाहर मौजूद है। शीरी आ जाती है चादर ओढ़े हुए और एक बार जनाब ज़ैनब के करीब जो है जाती है, जनाब ज़ैनब के करीब जाती है और सवाल जो है करती है ए बीबी आखिर आप कौन हैं और आपको इस तरह जो है क्यों कैदी बनाया गया है। अरे एक बार ज़ैनब ने कटे हुए सर की तरफ इशारा किया, अरे देखो उस सर को अरे वो तुमसे कलाम करना चाहता है। रिवायत की लफ्ज़ें हैं अरे लबे इमाम गोया हुआ, ए शीरी तुमने भी न पहचाना, अरे हमने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हारे घर अरे जरूर आएंगे। ए शीरी तुम्हारा आका और मौला हुसैन अरे तुम्हारे घर आ गया है। एक बार शीरी ने अरे चादर फेंक दी, मौला ये क्या हो गया, ए शहजादी आप और खुले सर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।